Hello everyone. Today I am going to discuss the analogy between electrostatic and magnetostatics. So let's start the topic. So in case of the electrostatics, there is a point charge, basically known as the point charge or a test charge, या static electric charge. And in case of magnetostatic, there is a permanent magnet. You can see here that this is a permanent magnet, and the electric field lines are created from that, and the directions are here also given. So first of all, in case of electrostatic, if there is a 2 point charge with a positive and negative sign, means charge present negative and positive, then there is just a electric field lines, and the field lines directions is from the positive to negative directions, means the directions of the electric field is from the positive to negative. This is the electric field lines, and these are the fringing electric fields lines, that is the direct towards positive to negative, and this is the fringing electric field. So in here we can see that when the 2 point charge of a opposite polarity is placed, then the electric field will in the directions from the positive to negative, and there is no any closed path is forms. In case of electrostatic, there is no any closed path forms. Basically what happened that electric field lines originated from the positive charge and terminated to the negative charge. So that's why there is no any closed path. Here you can say here fringing electric fields is from the positive to negative directions. But in case of a magnetostatics, what happened that the this is the permanent magnet, and this is the north pole, and that is the south pole. So electric magnetic field lines are coming from the north pole and goes to the south pole, and inside the magnet the directions of the magnetic field is from the south to north direction. So here we can see that and here there is a closed path form. यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ही क्या हो रहा है कि आपका परमानेंट मैग्नेट है, और इससे जो फील्ड लाइंस है वो आपके क्या हो रहे हैं, आपके ओरिजिनेट हो रहा है नॉर्थ पोल से, साउथ से इंटर कर रहा है, तो जो आपका मैग्नेट के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस होगा वो साउथ से क्या होगा, नॉर्थ पोल की तरफ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप फॉर्म कर रही है, और ये परमानेंट मैग्नेट है। और क्या होगा कि अगर आप इस केस में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के केस में आइसोलेटेड मैग्नेट नहीं एग्जिस्ट करता है। आप जैसे ही कोई एक मैग्नेट है उसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा कि जो दो आपके मैग्नेट है यहाँ पे, ये क्या होगा कि ओरिएंट हो जाएगा यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। सो वी कैन से दैट देयर इज नो आइसोलेटेड परमानेंट मैग्नेट एग्जिस्ट इन केस ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। एंड द सेकेंड वन इज दैट इफ वी प्लेस अ कोई आप यहाँ पे चार्ज रखो प्लस कोई क्यू चार्ज आप प्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ से जो फील्ड लाइंस होंगे वो आप देख रहे हैं कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शंस में आप देख रहे हैं, और इसके हर एक पॉइंट की जो लोकस है इसको आप एज अ सर्कल, आप जैसे ही आप इस पॉइंट्स को मैच कराइएगा तो इसका जो लोकस बनेगा वो क्या होगा, एज ए सर्कल। तो जो आपके कोई भी चार्ज प्लेस्ड होते हैं तो वहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके उसको आप मेजर करेंगे तो ये क्या होगा, एक स्पेरिकल शेप में आपके यहाँ से चार्ज में निकल रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस आप देख रहे हैं, हर तरफ क्या हो रहा है, रेडियल डायरेक्शंस में, आउटवर्ड डायरेक्शंस में। और ये जो सरफेस होगा, स्फेयर का जो सरफेस होगा, इसकी किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैलकुलेट करेंगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होता है, मतलब आपका नॉर्मल टू द सरफेस होगा। किसी भी पॉइंट पे अगर आप फाइंड करेंगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शंस में होंगे। And in case of magnetostatic, what happened that if you consider any current carrying wire, कोई भी आप करंट कैरिंग वायर को कंसिडर कर रहे हैं, उसमें हाई करंट फ्लो कर रहा है, तो जो ये पाथ बन रहा है सर्कुलर पाथ, इससे हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि आपका इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है। वो किसके थ्रू डिफाइन करते हैं, हियर दैट इज द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि डिसाइड करेंगे कि कोई भी अगर वायर है आपका करंट कैरिंग कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन किधर होगा। तो राइट हैंड थंब रूल में आपका जो है
जो ये आपका थंब होगा वो आपके करंट के डायरेक्शंस को इंडिकेट करेगा, और आपके जैसे जैसे फिंगर्स को आप रोटेट करिएगा तो वो आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को इंडिकेट करेगा। हर एक पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे देख रहे हैं डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आप मेजर कीजिएगा तो यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शंस होगा, और यहाँ पे आप मेजर कीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे तो ये आउटवर्ड डायरेक्शंस होगा। तो ये आपका था कि कैसे आप एक मैग्नेट, अगर करंट आपका कोई कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे ओरिएंटेशन होता है, किस डायरेक्शन से आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। सेकेंड आपका जो एनालॉगी है इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स में, वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का। आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आपका लाइन चार्ज होगा, सरफेस चार्ज होगा और वॉल्यूम चार्ज होगा। एज इट इज़ आप जस्ट आप मैग्नेटोस्टैटिक में देखेंगे तो आपका लाइन करंट होगा, सरफेस करंट होगा और वॉल्यूम करंट होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग किसी भी पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज के बारे में डिस्कशन करेंगे, और आपका मैग्नेटिक फील्ड में जो होता है आपका करंट, किसी भी वायर से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो लाइन चार्ज आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाइन चार्ज क्या होगा, कोई एक आपका लाइन है, लाइन चार्ज इनफॉर्मली, यहाँ पे क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। इनफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप किसी भी लेंथ के किसी एक पोर्शन को कट कर रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपका 3 कूलम एजम्पन्स, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 3 कूलम है, यहाँ पे भी आप कट करेंगे तो एज इट इज सेम लेंथ में 3 कूलम भी होगा, मतलब इनफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। लाइन चार्ज हो गया। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, लाइन चार्ज को रोयल से आप डिफाइन करते हैं, दैट इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडिंग बाई दैट लेंथ डी एल। सेकेंड वन इज द सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज, इन केस ऑफ सरफेस चार्ज देयर इज ए सीट, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सीट है, आपका सीट पे यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप कोई डीएस सरफेस कट करते हैं और उसमें डिक्यू लाइन आपका चार्ज प्रेजेंट है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे सरफेस चार्ज को, सरफेस चार्ज इज डिफाइंड बाय द रो एस एंड दैट इज इक्वल टू डिक्यू बाई डी एस। एंड द थर्ड वन इज द वॉल्यूम चार्ज। मीन्स आप देख रहे हैं कि आपका एक सिलेंड्रिकल शेप है, तो इसमें क्या है आपका एक्स वाई एंड जेड प्लेन में, तो ये आपका 3D में हो गया आपका। तो ये वॉल्यूम आप अगर कोई भी कट कर रहे हैं इस सिलेंडर का, तो ये क्या होगा कि डीवी वॉल्यूम है आपका, डीक्यू चार्ज प्रेजेंट है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, आपका वॉल्यूम चार्ज, डीक्यू डिवाइडिंग बाई डीवी। रो भी आपका इंडिकेट कर रहा है वॉल्यूम चार्ज, द यूनिट इज सेंटी कूलम्ब पर मीटर क्यूब, and in this case coulomb per meter square and coulomb per meter, length per meter, surface आपका per meter square and volume per meter cube. And in case of magnetostatics, there is a 3 types of line current, surface current and volume, एंड वी कैन डिफाइन लाइन करंट। मान लीजिए आपका ये वायर है, कैरी करंट कर रहा है आई, तो आप अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे आप डीएल कट करते हैं तो ये आईडीएल आपका हो गया लाइन करंट एंड डिफाइंड एज आईडीएल वेक्टर, एंड द डायरेक्शंस ऑफ द डीएल इन द डायरेक्शंस ऑफ द करंट। एंड देन सेकेंड वन इज द सरफेस करंट। सरफेस करंट में मान लीजिए आपका ये करंट का डायरेक्शन है, कोई आप सरफेस कट कर रहे हैं जो आपका क्या है, डीएस है, तो जो के है आपका, ये क्या है आपका सरफेस करंट डेंसिटी है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, करंट पर यूनिट आपका एरिया हो गया, जो यहाँ पे करंट पर यूनिट, यहाँ से क्या करेंगे आप, जो ये बी है ये आपका जो लेंथ हो गया उसको आप फाइंड करेंगे, और ये जो के का डायरेक्शन होता है ये आपका करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, अगर आपका करंट इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है तो के का जो डायरेक्शन होगा वो आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सरफेस करंट डेंसिटी। एंड थर्ड वन इज द वॉल्यूम करंट। तो वॉल्यूम करंट इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, आपका जितना फ्लो होगा वो आपका वॉल्यूम करंट हो गया, और के यहाँ पे सरफेस करंट डेंसिटी है, जे क्या है आपका वॉल्यूम करंट डेंसिटी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या है, ये लाइन करंट हो गया, सरफेस करंट हो गया, वॉल्यूम करंट हो गया, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइन, सॉरी, ये जो आपका है वो लाइन चार्ज है, सरफेस चार्ज है, वॉल्यूम चार्ज है, ये लाइन करंट है, सरफेस करंट है, वॉल्यूम करंट है। तो आप इंडिविजुअली क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपका रिस्पेक्टिव लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज दिया हुआ है एज इट इज, इसमें आपका आइडियल डिफाइन किया हुआ है, के दिया हुआ है, जे दिया है, तो आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे।
फोर्थ आपका जो डिफरेंस है वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आपका क्या होता है, बेसिकली फ्लक्स डेंसिटी किसी भी सरफेस से कि टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन जितने पास करते हैं यूनिट एरिया में, वही आपका क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी होता है। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन पासेस थ्रू द यूनिट एरिया, जितना भी एरिया से पास कर रहे फ्लक्स लाइन्स वो क्या होगा, आपका फ्लक्स डेंसिटी होता है। एंड दिस इज डिनोटेड बाई डी, डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई एंड द यूनिट इज अ कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन है ये परमिटिविटी है, फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। और सेकेंड आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बी होता है, इसका यूनिट इंडिकेट करते हैं बी वेक्टर से, वो ये क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। एंड बी इज इक्वल टू म्यू एच, म्यू इज द permeability and the value of in the free space is 4 pi into 10⁻⁷. Electric flux and magnetic flux, this will be denoted by psi, and here you can say this is equal to d dot ds in case of electric flux line, electric field, and in case of magnetostatic that will be b dot ds, and the unit will be coulombs and that is the Weber. So that's all. This is the analogy between electrostatics and magnetostatics. That's all. Thank you.